Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class, our topic is compound microscope. In previous class, we have understood about simple microscope. We saw that simple microscope, as it was a microscope, its work was, the device work was to magnify the image, to magnify the object, to make an image which is having some magnification. As it was simple microscope, its construction was also simple. It was just having a convex lens. Object was being placed in between focus and optical center, and image was formed which was magnified, erect and virtual. So now in simple microscope, we also saw that simple microscope was having a limit of magnification. As we can say that focal length will increase, the power of lens will increase. When power of lens will increase, the magnification will be more. But up to what limit we can increase the focal length? There is some limit on that. And after that, if we want to get the more magnification, we cannot get it from simple microscope. But we are having the remedy of it, compound microscope. So we'll see about compound microscope. Let us see principle, construction, diagram and working of it. So first of all, principle. On what principle compound microscope works on? As we know, magnifying power of a simple microscope is increased by decreasing the focal length. You are decreasing the focal length. फोकल लेंथ को छोटा करते जाइए, कॉन्वेक्स लेंस का पावर बढ़ते जाएगा. But if the focal length cannot be decreased below certain limit, up to a certain limit, एक हद के बाद में आप फोकल लेंथ को और कम नहीं कर सकते. To obtain higher magnification, in such case, to obtain higher magnification, two or more convex lenses are arranged together. If we want more magnification, we want to see small objects, we want to see the objects which are very small. By the help of microscope, we want to magnify it, we want to see things related to that object. Then we need more magnification. In such case, more magnification cannot be obtained by a single convex lens. So we will arrange two or more than two convex lenses in such a way that they are going to give us more magnification than the simple microscope. So this is the principle. Let us see the construction. What are the main parts of compound microscope? It is having a hollow tube. One hollow tube is there in which one lens is called objective lens, which will be near the object. जो ऑब्जेक्ट के पास में रहेगा उस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं. ये लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है दूसरे लेंस से. जो दूसरा लेंस है उसको बोलते हैं आई पीस लेंस. इस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है. इस लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है. और एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है जिससे ये लेंस के बीच की दूरी को सेट किया जा सकता है. और एक क्रॉस वायर भी होता है, जो हमें, यू मस्ट हैव सीन सम काइंड ऑफ क्रॉस वायर which gives us a sense that this is the object and we can place that object in between that cross wire. एक निशान जैसी चीज होती है क्रॉस वायर. So let us go through the diagram in which we will understand about the working also. So for understanding the diagram, here also you can see we are having two convex lenses. We are going to see in simple microscope we saw that convex lens was having only one convex lens. But here we are going to use two convex lenses. So first one will be our objective lens, which will be near the object, L1. Its optical center O1, okay, and its focal length, let it be like
FO FO focal length. One more length is going to be here, by the way, but let us see how it is going to work just by the starting. So here in compound microscope, we are going to keep the object after the focal length, after the focus of first lens, which is objective lens. So this is the object. Name of object is AB. Okay, so what will happen? We already know that when the object is placed in between 2f and f in front of a convex lens, then what happens? A real and magnified image is formed. Let us see. First ray will go like this, parallel to principal axis. Parallel to principal axis, ray will pass through the focus. Then another ray will go, let us make it by scale only. Another ray will go through optical center. These two rays will meet somewhere. As you can see, the height of object is very small. This is our object AB, and its image, first image formed, will be a little more than or little magnified than the object. So this is our image formed by the first lens, objective lens, B dash A dash. So this is the magnification here, image formed by the first convex lens L1. Now as we have discussed that we are going to use, हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं. तो ये तो हो गया पहला कॉन्वेक्स लेंस, इसने यहाँ इमेज बना दिया. अब ये जो इमेज बना है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह दूसरे लेंस के लिए. वी विल मेक वन मोर लेंस ओवर हियर. We'll make one more lens over here, and this will be having more focal length than the previous one. This is our lens number 2, which is L2, and this image formed by the first lens will work as the object for second lens. Optical center O2. So what will happen about it? Now we are going to place this lens L2 in such a way, हम लोग इस L2 लेंस को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये लेंस इस लेंस का फोकस इस ऑब्जेक्ट के बाद में हो. It means that this image means the image formed by the first lens, lies between the focus and the optical center. This is the idea. Okay, so let it be here. This is the focus of lens number 2, FE. Why I am using FO and FE? Because FO means focus of objective lens, and FE means focus of eyepiece lens. This is called eyepiece lens, this is called objective lens. ये हमारी आंखों के पास रहने वाला है इसलिए इसको eyepiece lens बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के पास रहने वाला है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं. तो फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ रहा है अब हमारा ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन. जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, ये तो इमेज है मगर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अगर वहां पर हो इमेज ऑब्जेक्ट, सो वेयर द इमेज विल बी फॉर्मिंग,
image will be forming will be a virtual image, magnified and erect. Let us see how it will. फर्स्ट रे, अच्छा यहाँ पे भी हम फोकस ले लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ भी फोकस ले लेते हैं. ओके, सो ये गया पहला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फ्रॉम वेयर इट विल पास थ्रू फोकस. After refraction it will pass through focus. So here it is passing through focus. Another light ray will pass through optical center. It will not deviate, सीधा सीधा चले जाएगा. देख के लग रहा है पैरेलल बट इट इज नॉट पैरेलल. इट विल मीट समवेयर अराउंड हियर. हाँ, पीछे इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं. इसको भी प्रोजेक्ट करते हैं पीछे. So we will get an image, virtual image. We will get a virtual image somewhere over here. Not getting on the screen? Okay. Not getting on the screen. Somewhere we'll draw by the scale, by the way. Okay, I'm not drawing it right now, but we'll get the image somewhere here. We'll get the image somewhere here. See how much magnified it is. Virtual image will be formed by the second lens. By the second lens, virtual image will be formed. It will be erect. Erect रहेगा मतलब इसके फॉर्म में तो ये तो उल्टा है, मगर इसके लिए तो ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही है. इसके लिए मतलब जो हमारे सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, इससे फॉर्म हुआ इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है और उसी की तरह बन रहा है. वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. So this is it which is going to happen. The distance between it will be arranged with the distance between these two lenses will be changed by the rack and pinion. एक gear system ऐसा कुछ होगा जिससे ऊपर नीचे हम करेंगे measure करने के लिए. Okay, so what will be the terms related with it? Object का distance optical center पहले लेंस से हम लोग ले लेते हैं UO. इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाला इमेज ना जो इसके पहले वाले लेंस के लिए, VO. ओके, अब यही काम कर रहा है इसके लिए ऑब्जेक्ट. सो इट विल बी UE. हम लोग इमेज को किससे लेते हैं? इमेज को हम किससे बनाते हैं? इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U बताते हैं, इमेज के डिस्टेंस को V. सो सी इमेज का डिस्टेंस इस लेंस के लिए. देन इसके लिए दिस मीन्स सेकेंड लेंस के लिए ये होगा इमेज. सो इट विल बी VE. दिस इज VE. ओके, दिस इज VE. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, टू लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज वी आर गोइंग टू टेक इट एज L. दो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग L लेने वाले हैं. L will be, small l will be the distance between it. So this is what which is going to give us a magnified image. ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो ये उल्टा रहेगा, बट हमारे लिए उल्टा दिखेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बट इट विल गिव अ मैग्निफाइड इमेज. एंड बाय द वे, वेरी स्मॉल थिंग,
एक बहुत छोटी सी चीज को हमें माइक्रोस्कोप से देखना है, वो उल्टी दिखे सीधी की दिखे, हम लोगों को उसको जज करना है, हम लोगों को उसको स्टडी करना है. सो मैग्निफिकेशन इज नीडेड. सो हियर एज यू कैन सी बाय द डिस्टेंस इट इज बीइंग फॉर्म्ड समवेयर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के मतलब पहले वाले के लिए जो इमेज है उसके पीछे ही बनेगा. यहां पर वो लेंस की इस तरफ बन रहा है और इस डायग्राम में वो लेंस के इस पर बन रहा है. इट डजंट मैटर बट इट इज गोइंग टू गिव यू मैग्निफाइड इमेज. सेम थिंग यूओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, वीओ इमेज का डिस्टेंस पहले वाले लेंस से, यूई अब दूसरा वाला जो पहला वाला इमेज बन रहा है ना वो इसके लिए L2 के लिए एक इमेज बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो वो यूई हो गया और वीई हो गया. फाइनल इमेज जो बन रहा है हमारा उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर दूसरे वाले लेंस आईपीस लेंस से. So now we'll move to understand and get an expression for magnification. We already know yesterday only. अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो ये आज समझ नहीं आएगा. कल का आप वीडियो जरूर देखें. उसमें हमने बात किया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मतलब ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहां पर हमको क्लियरली सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन में दिखता है बिना किसी डिवाइस के. 25 सेंटीमीटर दूर है ना, जिसको हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, इतने दूर. वही चीज देखो ये आई है डी डिस्टेंस की दूरी पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक, यहां से मान लो ये एंगल, मान लो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज दैट एंगल, इसको मैं बोल रहा हूं अल्फा. ओके, अल्फा इज द एंगल विजुअल एंगल नेकेड आई से, विजुअल एंगल नेकेड आई से वो क्या होगा, tan alpha is equal to perpendicular upon base HO upon D, perpendicular upon base HO upon D. ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस. ओके, ये एंगल सस्टेन करेगा. ये हाइट, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा ये एंगल होगा. और छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत कम एंगल बनाएगा ये. तो इसीलिए tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है. जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो tan अल्फा के बराबर होता है. तो अल्फा इज इक्वल टू HO upon D. क्या करने वाले हम लोग, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालने वाले हैं. कल ही हमने देखा है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 1 डाल दिए. अब बीटा में पहुंचते, tan बीटा इज इक्वल टू, चलो ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं. बीटा असल में कौन सा एंगल है, देखिए ये वाला एंगल है, नहीं समझ में? देखो यहाँ पे क्या एंगल है, ये जो इमेज बन रहा है बीटा इज द एंगल फॉर्म, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज. विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट द, कौन बना रहा है ये फाइनल इमेज, अभी लेंस. तो उसके ऑप्टिकल सेंटर पे ये फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है. और हम लोग अपनी आंखों को यहीं पे रखने वाले हैं, हम लोग अपनी आंखों को बिल्कुल यहां पे ही रखने वाले हैं, इसके बिल्कुल पास, और पास कर लो. आई पीस लेंस जो बोलते हैं उसके बहुत पास में हम लोग रखेंगे अपनी आंख को. देखिए ना माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखेंगे, एकदम पास में रखेंगे. तो विजुअल एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है सर, देखो ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बीटा बोलेंगे, इसको बोलने वाले हम लोग बीटा. विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज. ओके, सो व्हाट वी विल गेट देन, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे बीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये बीटा जो है इसी से मिलता जुलता यहाँ पे है. तो हम लोग फाइनल A डबल डैश B डबल डैश लिख सकता हूँ यहाँ पे, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 B डैश. नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे इमेज बना है, उसका नाम दे देता हूं मैं A डबल डैश B डबल डैश. तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ. इसकी हाइट अपॉन ये दूरी O2 B डैश, A डैश B डैश अपॉन O2 B डैश हमारा tan बीटा हुआ. मगर यही बीटा को मैं A डैश B डैश अपॉन O2 B डैश लिख सकता हूं. ये भी होगा, रेशियो है, ये इतना ज्यादा है तो उसकी दूरी भी ज्यादा है, तो दोनों का रेशियो उतना ही होगा जितना ये छोटा सा हाइट अपॉन छोटा सा डिस्टेंस. इजंट इट? तो tan बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं, tan बीटा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन O2 B डैश. लिख सकते हैं ऐसा. वाई?
हम बड़ा वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इमेज का हाइट कौन नापेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट नाप सकते हैं हम लोग, है ना। और इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए वो इससे द्वारा बना गया इमेज है, तो हम लोग इस पे ही काम करते हैं, इसी को रेफरेंस रख के करते हैं काम। तो tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन O2 b डैश। सो लेट अस सी, आगे देखते हैं a डैश b डैश और O2 b डैश में क्या कुछ आगे कर सकते हैं हम लोग। सी हियर a डैश b डैश इज एक्चुअली a डैश b डैश अपॉन O2 b डैश। ये जो O2 b डैश है ना, यही हमारे लिए UE था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखो ये a डैश b डैश O2 b डैश, ये O2 b डैश जो है ऑब्जेक्ट की दूरी, ये हमारे लिए सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की दूरी आई पीस लेंस से UE, ठीक है। तो हमारे लिए tan बीटा इज इक्वल टू क्या मिला, a डैश b डैश अपॉन UE। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। अब हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी पहले वाला लेंस, फर्स्ट वाला लेंस क्या है, ये वाला लेंस। हम लोग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U होता है लेंस के लिए, नहीं याद आ रहा 10th वाली बात। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या हुआ, V अपॉन U, है ना। तो देखते हैं V यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस V सर इस तरफ है, यानी कि VO है, और इमेज का डिस्टेंस UO है, मगर वो उल्टी दिशा में, लेफ्ट साइड में, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चलो ले लेते हैं VO अपॉन माइनस यू, VO अपॉन माइनस यू। अच्छा, हम लोग एक और बात जानते हैं कि M इज इक्वल टू V अपॉन U के साथ साथ M इज इक्वल टू HI अपॉन HO भी होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर होता था। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले वाले लेंस के लिए देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज AB मान लो HO है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB है, और हाइट ऑफ इमेज HI है, मान लो HI हाइट ऑफ इमेज। तो यहां पे क्या बन रहा है, A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB। अच्छा, एक और बात यहां ध्यान रखना, देखो AB प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, और A डैश B डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इसलिए उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस ऑफ A डैश B डैश लिए हमने। तो क्या मिल रहा है यहां से, VO अपॉन माइनस UO इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डैश B डैश अपॉन AB। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, A डैश B डैश की वैल्यू चाहिए हमें। क्यों, एक्चुअली ये कर क्यों रहे हम लोग, यहाँ पे A डैश B डैश ना खटक रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा दिखना चाहिए, A डैश B डैश लिखना है। A डैश B डैश की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को, VO अपॉन UO, माइनस माइनस कैंसिल हुआ ना, इनटू AB, और AB क्या है, HO के बराबर, अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो A डैश B डैश इज इक्वल टू VO इंटू HO अपॉन UO। सो इसकी वैल्यू रखे तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, A डैश B डैश अपॉन UE। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा A डैश B डैश की वैल्यू रख देते हैं VO अपॉन UO इंटू HO अपॉन होल अपॉन UE, या फिर VO थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं VO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UE। तो हमें मालूम है कि ये बीटा जो एंगल है ना, छोटा सा एंगल होगा। कितना मैग्निफिकेशन दे रहे हैं, ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं दे रहा है पहला वाला लेंस। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट का छोटा सा लेंस ऑलरेडी छोटा सा एंगल बन रहा है, और उसका थोड़ा सा मैग्निफिकेशन हुआ, ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं हुआ था पहली बार, उसमें भी थोड़ा सा एंगल। तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा ले लेते हैं यहाँ पे, तो बीटा इज इक्वल टू V नॉट अपॉन U नॉट इंटू H नॉट अपॉन UE। इसको भी इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, काम आएगा। बीटा पता चल गया और अल्फा पता चल गया, हम लोग जानते, देखो अल्फा भी मिल गया, H नॉट अपॉन HO अपॉन D, ये देखिए यहां से, और बीटा भी पता चल गया है हमें, V नॉट अपॉन U नॉट, VO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UE। हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कल ही मिला था, M कैपिटल M टोटल मैग्निफिकेशन बाय द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। चलो बीटा की वैल्यू रखते हैं V नॉट अपॉन VO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UE, होल अपॉन अल्फा की वैल्यू HO अपॉन D। यहां पर हमें एक चीज मिलेगी, HO दोनों तरफ मिल रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल करते हैं, और क्या मिल रहा है अब, VO अपॉन UO इंटू D ऊपर चले जाएगा, डिनोमिनेटर D अपॉन UE। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, एनालिसिस करने की बात है। एनालिसिस हमारी ये हो रही है कि ये VO अपॉन UO, देखिए यहाँ पे हमने पहला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले वाले लेंस के लिए, ये यहां पर VO अपॉन UO मैग्निफिकेशन पहले ऑब्जेक्ट
पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था, मतलब VO अपॉन UO को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, और D अपॉन UE, अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो D अपॉन UE हमें लेंस का मैग्निफिकेशन देता था, मतलब माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देता था। मतलब ये जो आई लेंस है यही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हमें मैग्निफिकेशन करके दे रहा है। तो हमें कल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी मिला था, m इज इक्वल टू डी अपॉन यूई। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन बाय आईपीस लेंस, और ये हो गया मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मतलब टोटल मैग्निफिकेशन बाय द दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू MO इंटू ME। यहां पे समझ नहीं आया तो ध्यान देना, पहला जो लेंस है मैग्निफिकेशन का हमारा सिंपल फॉर्मूला पहले जो हमको 10 से पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तो मैग्निफिकेशन बाय फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लेंस। और कल ही हमको मिला था मैग्निफिकेशन बाय सिंगल लेंस, हमको माइक्रोस्कोप के लिए मिला था D अपॉन यूई। तो ये हमारा सेकंड वाले लेंस जो मेन मैग्निफिकेशन दे रहा है हमको ज्यादा मैग्निफिकेशन, तो ME हो गया। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू MO इंटू ME, यानी कि पहला मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू दूसरा मैग्निफिकेशन बाय द आईपीस लेंस। मगर यहाँ पे हमें दोनों चीज को याद रखना है, ये वाला भी एक फॉर्मूला बनता है जो बेसिकली हमें बहुत बार यूज होगा, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। सो दिस वाज इट। नाउ लेट अस सी केसेस। कल भी हमने केसेस देखे थे कि सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो हमें मालूम था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज जो बन रहा था वो D डिस्टेंस पे बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के दूरी पर बनना चाहिए बाय द आईपीस लेंस, दूसरे वाले लेंस से D डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में U क्या हो जाएगा, दूसरे वाले लेंस के लिए माइनस यूई है ना, माइनस क्यों ले रहे हैं क्योंकि इस तरफ था, लेफ्ट साइड में था इमेज, इमेज मतलब पहले वाले का इमेज जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो माइनस यूई। वी की दूरी क्या हो जाएगी, देखो फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस, है ना, यही तो हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला कल बात किए थे। अरे जो इमेज बन रहा है ना, इमेज जो बन रहा है, फाइनल इमेज जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा मैग्निफाइड तब होगा जब वो 25 सेंटीमीटर, कल हमने बात की थी डी डिस्टेंस की दूरी पर होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा माइक्रोस्कोप से भी। तो V इज इक्वल टू माइनस डी ले लेते हैं, V इज इक्वल टू माइनस डी, और F इज इक्वल टू FE लेंगे क्योंकि वो आईपीस लेंस की बात हो रही, तो कौन सा फोकल लेंथ लेंगे, FE, पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई, ठीक है। 1 अपॉन FE इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट खोले माइनस 1 अपॉन डी प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन यूई, तो UE की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन डी। क्यों निकाल रहे हैं यूई की वैल्यू, क्योंकि हम लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां से मिला है M इज इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू D अपॉन यूई। ये यूई की वैल्यू को रख देते हैं, 1 अपॉन यूई की वैल्यू को रख देते हैं हम लोग, क्या मिलेगा देखो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 VO अपॉन UO इंटू D अपॉन यूई। तो यूई की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन यूई की वैल्यू यहाँ पे मिली 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, ये रख दिया मैंने। D को मल्टीप्लाई करता हूं तो D अपॉन D इंटू 1 अपॉन D 1 हो जाएगा, हमें मिलेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V नॉट अपॉन U नॉट इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ये होगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो दिस इज if question is asked we can easily calculate. Case 2 नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जब हमारी, अच्छा देखो, जब हमको एक सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला सिचुएशन चाहिए, उस समय हम लोगों को अपनी आंखों को स्ट्रेन करना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा। उतना जोर नहीं डालना है, मान लो रिलैक्स आई से कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है। रिलैक्स आई से कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है। रिलैक्स हमारी आंखें कब रहती है, जब इमेज इंफिनिटी में दिखे, जब इमेज इंफिनिटी पे हो, सॉरी, जब फाइनल इमेज आपका यहां पर जो बन रहा है वो इंफिनिटी में हो, हम उसी को तो देखेंगे। दूर में कोई इमेज दिख रहा है, दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, हम जब उसको देखते हैं तो हमारी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स रहती हैं, स्टार्स को देखते हैं तब, जैसे तो इंफिनिटी में। तो U इज इक्वल टू माइनस यूई जैसे पहले था, V इज इक्वल टू अब लेंगे माइनस इंफिनिटी, F इज इक्वल टू प्लस FE पहले के जैसे,
कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी लो चाहे 1 अपॉन इन्फिनिटी लो, जीरो ही होना है, 1 अपॉन कोई भी बहुत बड़ा नंबर जीरो ही होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई मिल रहा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वी नॉट वी ओ अपॉन यू ओ इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई, 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई के बराबर है, यानी यू ई एफ ई के बराबर है, तो डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। यहां पर हमको मिल गया मिनिमम मैग्निफिकेशन, मतलब कम मैग्निफिकेशन हो रहा है बहुत, मगर हमारी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, जितना हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से उतना इतना मैग्निफिकेशन होगा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस याद रखना, O1 O2 दो लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को L लेते हैं, वो क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस, देख लो यहाँ पे क्या होगा, देख लो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच की दूरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी, तो देखो V नॉट तो इतना हुआ और ये UE हो गया, मगर ध्यान रखना इस लेंस के लिए V नॉट हमारे लिए पॉजिटिव होता था और इस लेंस के लिए UE हमारे लिए नेगेटिव होता था, तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव करके गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये दूरी L जो है वो सिंपल इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर, इसीलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहां नहीं लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव इस केस में नहीं लेना है, क्या, जब आप L पता कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, इसीलिए मॉड ऑफ L इज इक्वल टू मॉड ऑफ V नॉट प्लस मॉड ऑफ UE, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहां ध्यान मत देना, सीधा सिंपल प्लस करना। सो लेट अस सी अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट, which is NCERT exercise question number 9.11 9.11, जो बोलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज बेसिक क्वेश्चन आई शुड से, जिससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया है 2.0 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस का भी फोकल लेंथ दे दिया है 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी दे दी है, एल की वैल्यू दे दी है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अब ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उससे कितना दूर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, जिसको हम लोगों को देखना है मैग्नीफाई करके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज, ताकि हमको जो फाइनल इमेज मिल रहा है वो कैसा मिले, 2 पॉइंट्स में दे दिया है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज हमको डी डिस्टेंस की दूरी पर मिले जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। हमको जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस की दूरी पर मिलता है तो हमें कैसा मैग्निफिकेशन मिलता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन, तो पहला केस हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। दूसरा बोलता है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, जो फाइनल इमेज मिल रहा है वो इंफिनिटी बहुत दूर में हो, तो ये कौन सा वाला केस है, केस 2 अभी जो पढ़े थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। रिलैक्स्ड आई में हमको एट इंफिनिटी में वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा जब हमको उसका जो इमेज मिल रहा है वो इन्फिनिटी में मिल रहा है और हमारा आईज रिलैक्स्ड होगा उसको देखने के लिए, और दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर भी निकालो, ऐसा बोलता है। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है, गिवन है फोकल लेंथ दोनों का FO प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस ही लेना है, कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा FE आईपीस का फोकल लेंथ प्लस 6.25 सेंटीमीटर, लेंथ दोनों बीच की, दोनों लेंसेज के बीच की दूरी L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड UO ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, कब, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी निकाल देना साथ में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में, और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाले प्लेस में। मतलब यहां पे हम लोग ना दोनों लेंसेज के बीच की दूरी को सेट करके रखें, ऑब्जेक्ट कहां रखना है ये सेट करना है, अदरवाइज इन दोनों के बीच की दूरी को हम एडजस्ट करते थे, ऑब्जेक्ट को एक जगह रखते थे। इस बार क्या बोल रहा है, दोनों लेंसेज के बीच की दूरी को सेम रहने दो 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, पहला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, दूसरा मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, इसलिए U नॉट डैश मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्वेश्चन मार्क। पहले तो देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला, फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस D, फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, D में, ठीक है, किससे, किसके द्वारा, हमारे फाइनल लेंस के द्वारा, मतलब सेकंड लेंस आईपीस लेंस के द्वारा, तो VE इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, यानी कि V इज इक्वल टू D के बराबर ले लो। फाइनल इमेज जो बन रहा है वो VE शो होता था, देखो ये VE
डी डिस्टेंस की दूरी पर होगा, मतलब कि 25 सेंटीमीटर, मगर लेफ्ट साइड में है तो -25 लेंगे, तो -25। यही समझने वाली चीज है, बस यही है, एक बार गौर से देख लो। देखो ये VE है, हमारी आंख बस यहीं पर है, बिल्कुल पास में, इसके लेंस के पास में। तो जो इमेज बनना चाहिए, पहला केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में, वो डी के बराबर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनना चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि VE इज इक्वल टू डी हो जाएगा, V इज इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी कि -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, देखो इस लेंस के लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, लेफ्ट में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। चलो -25 नहीं आया समझ में, देखो V इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। नाउ 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE। FE हमको पता है 1/6.25 हो गया, VE 1/-25, UE नहीं पता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, इस लेंस के सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, जो पहले वाले का इमेज है वो ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, तो ये UE निकल जाएगा हमारे लिए। देखो ये माइनस इधर ले आया मैं, तो पॉजिटिव बन गया 1/25, और सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 1/UE इज इक्वल टू -1/6.25। देखो ये यहां से माइनस इधर गया तो दोनों माइनस हो गए। सॉल्व करने के लिए 6.25 को ऊपर 100 बना लो, -100/625, दोनों कैल्सियम निकालेंगे, 625 निकलेगा, डिवाइड किए 100 का 100 रहा, -25 × 25 625 होता है, डिवाइड किए 25 बचा, 1 से 7 मल्टीप्लाई किए 25 हुआ, -100 -25 -125/625। UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, -625/125 -5 सेंटीमीटर। ठीक आ रहा है, माइनस ही आ रहा है, माइनस आ रहा है, सही आ रहा है, लेफ्ट साइड में ही पड़ रहा है हमारा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रहता था। ठीक है, अब हम जानते हैं, अभी देखे कि दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम L बोलते थे, वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और उसका फॉर्मूला है mod of V प्लस mod of UE, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बस, मॉड का मतलब उसके वैल्यू को देखना, पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना। तो 15 इज इक्वल टू V0 की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे एक्चुअली V0 निकालना चाहते हैं हम लोग, है ना, V0 ही निकालना चाहते हैं, और V0 निकाल के U0 निकालेंगे, U0 ही तो निकालना है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, पहले वाले लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो V0 यहां से निकल जाएगा, 15 इज इक्वल टू V0 प्लस मॉड ऑफ 5 -5 जो कि 5 होगा, तो 15 इज इक्वल टू V0 प्लस 5, तो V0 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिल रहा है हमको यहां से। अब हमारा फॉर्मूला बनेगा पहले वाले लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/FO इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0, सॉरी 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी, लेंस फॉर्मूला लग गया। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारा फोकल लेंथ दिया था 2 सेंटीमीटर, 1/2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/U0, UO की वैल्यू नहीं मालूम, तो 1/UO इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, 1/UO को इधर ले गए तो पॉजिटिव बन गया, 1/2 को इधर ले आया नेगेटिव बन गया, 1/10 माइनस 1/2, सॉल्व किए -4/10 मिल रहा है, उल्टा किए UO इज इक्वल टू 10/4 यानी कि -2.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। UO पहले केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में ऑब्जेक्ट को माइनस यानी कि लेफ्ट साइड में 2.5 सेंटीमीटर पर रख दो, तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन उसका। कितना मैग्निफिकेशन होगा, mx इज इक्वल टू फॉर्मूला है VO/UO नॉट निकल रहा है आज, VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। याद आ रहा है, अभी देखे थे फॉर्मूला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इतना ही होगा, सब वैल्यू पुट कर देते हैं, VO की वैल्यू 10, UO की वैल्यू -2.5 इंटू 1 प्लस D की वैल्यू 25 लेंगे, D की वैल्यू 25 लेंगे, 6.25 FE की वैल्यू, सॉल्व करेंगे, देखो 10/-2.5 -4 मिलेगा, 1 प्लस 25/6.25 हमको 4 मिलेगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 4 के साथ -4 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किए -20, यानी 20 गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिल रहा है। हाँ, ये हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम, 20 गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन दे रहा है। यहां माइनस क्यों लगा है सर, माइनस लगने का मतलब क्या है, यह समझ लो, कंफ्यूज यहीं पे होते हैं बच्चे। ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और उसका इमेज मिल रहा है 20 गुना
बढ़कर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसीलिए मैग्निफिकेशन के सामने माइनस लगा हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है ना, उसका इन्वर्टेड इमेज मिल जा रहा है उसका, इसलिए माइनस दिख रहा है वहां पे, इसीलिए हम उसको भी लिखेंगे। क्या लिख देंगे अगर मान लो वहां पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज विच इज इन्वर्टेड। ठीक, दूसरी बात करते हैं, अब तो ये जैसा बना वैसे ही समझ में आ जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी में बनेगा तो मिनिमम मैग्निफिकेशन, इमेज अगर बहुत दूर में बन रहा है, इमेज अगर बहुत दूर में बन रहा है हमारे लिए, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, वी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई, जिसमें से v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रख देंगे, एफ की वैल्यू 6.25 दिया हुआ था। सो लेट अस पुट द वैल्यू, व्हाट वी विल गेट, we will get 1 upon 6.25 minus 1 upon 6.25 is equal to minus 1 upon infinity minus 1 upon ue। 6.25 1 upon 6.25 को 100 upon 625 लिख देना, आसान हो जाएगा। 1 upon minus infinity 0 minus 1 upon ue, ue की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस 625 upon 100 यानी कि माइनस 6.25 सेंटीमीटर। कैसे आई देखो, माइनस यूई को इधर ले गए, ये इधर ले आए, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, u इज इक्वल टू माइनस 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब L इज इक्वल टू vo प्लस uo होता था मॉड में, तो vo की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, फिर वही बात चल रही है, uo की वैल्यू यहां रख देते हैं, अभी जो मिला माइनस 6.25 जो कि मॉड में है, तो 6.25 हो गया, 15 से माइनस किया उसको उधर ले जाकर, तो 8.75 हमको vo मिला। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कहां बन रहा है, 8.75 पे। वही चीज क्या होगा इसके लिए, वही चीज क्या होगा इसके लिए, इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो 1 अपॉन FO इज इक्वल टू 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो 1 अपॉन 2 FO की वैल्यू 2, 1 अपॉन VO 1 अपॉन 8.75 माइनस 1 अपॉन UO की वैल्यू नहीं मालूम, और UO तो ही निकालना है हमें, UO डैश बोल लेंगे इस बार, या UO बोल लो। 1 अपॉन UO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले आओ, और 1 अपॉन 2 को इससे माइनस कर दो, ये इधर पॉजिटिव था, यहाँ पे आया RHS में आया तो नेगेटिव हो गया। 100 अपॉन 875 देखो, 1 अपॉन 8.75 था, 100 अपॉन 875 माइनस 1 अपॉन 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1750 अपॉन माइनस 675। इसको याद रखना, इसी की वैल्यू पुट करेंगे, डेसिमल में ले आना आंसर दिखाने के लिए। UO इज इक्वल टू माइनस 2.59 सेंटीमीटर डिवाइड करके देखने पे। मगर मैग्निफिकेशन भी पता करना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला VO अपॉन UO इज इक्वल टू D अपॉन FE, अभी देखे थे यही मिलता था हमको, मिनिमम मैग्निफिकेशन। D 25 रख दो, FE की वैल्यू 6.25, VO की वैल्यू 8.75 और UO की वैल्यू आप माइनस 2.59 की जगह 1750 अपॉन माइनस 675 रखोगे, अपॉन माइनस 675, तो यहां पर कैलकुलेशन करने में आसान जाएगा, और हमको आखिरी में डिवाइड करने पे मिलेगा माइनस 3.375, और इन दोनों को डिवाइड करने पे 4 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मिनिमम मैग्निफिकेशन माइनस 13.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये तो मैग्निफिकेशन है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। मिनिमम मैग्निफिकेशन 13.5 गुना मिलेगी, माइनस साइन डी बता रहा है हमको कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा इमेज, फाइनल इमेज। सो दिस वाज इट, दिस वाज द न्यूमेरिकल, वेरी नाइस न्यूमेरिकल। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू विल अंडरस्टैंड एनीथिंग। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रेफरेंस बुक। बाय द वे, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इट। कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।